Your life. Thank you, Gaurav. Good evening, a very warm welcome to all to our music veranda people. And this is our music veranda of love, batein, bahut sari batein, joy, moments, authenticity, magic, and music. Gratitude to all who are watching us live from Panipat, Indore, Ujjain, Ratlam, Chandigarh, and from Australia, from Canada, from Dubai, and from so many places. So today we are collating all what veranda is about. So it is bate, right? It is about music, it is about connection, and it is about being yourself. And this all everything we are collating, which will lead to what? Which will lead to magic, which will lead to awesomeness. And guess what? And we have with us the magic man of communication, author Sherry, in talk with Gaurav, the shan and soul of Veranda, the entrepreneur, author, and loves to talk. So this is what Gaurav is about. And author Sherry, Gaurav Jain will tell us more about him, but what I can say with my little connection and experience, he's fun, he's authentic, he's humble, he makes things sound so simple, he's lovely to talk to, and most important, he loves music, and he's equally excited to be at Veranda like we are. So, well, over to you, Gaurav Jain. Thank you. Welcome, author Sherry. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मैं अमिताभ बच्चन का फैन गौरव जैन एक बार फिर आपके साथ कहने फिर वही बात कि चलो मेरे साथ म्यूजिक वरांडा में आज हम करने वाले हैं बहुत सारी बात. और कौन है हमारे साथ? ऑथर शरी से करेंगे हम ढेर सारी बात, म्यूजिकल बात. तो मिलाओ हाथ. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. So welcome my good friend, my magical friend, my public speaker. Great. I'm really blessed and honored. I mean, I don't have words कि मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि आज ऑथर शेरी के और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. और लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस दोस्तों, राइट? और हम किन से कहाँ मिल जाते हैं और कैसे कारवा बन जाता है हमें खुद भी पता लगता. सो वेलकम एवरीवन टू म्यूजिक वरांडा. हम आप देख रहे हैं म्यूजिक वरांडा में हमारे साथ में आज ऑथर शेरी जुड़े हैं और हम आज बहुत सारी उनकी जर्नी के बारे में बातें करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात करेंगे. और किसी के कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, वो आप हमें फेसबुक में कमेंट से बता सकते हैं. कोई भी सजेशंस हैं एंड वी वुड लव टू केटर दैट. सो ऑथर शेरी, वेलकम भाई, वेलकम. थैंक यू. नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब. आप सभी को नमस्कार और मेरा प्रणाम. बहुत अच्छा यहाँ पे आके. एंड ऑथर शेरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्योंकि एक्चुअली इतनी सारी बातें हैं ना, लेकिन ऑथर शेरी कौन है, इनकी क्या जर्नी है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ. क्योंकि अब जैसे जब मैं इनसे मिला था एक हमारा इंप्रेशन बन जाता है, लेकिन जब हम उनको स्टेज पे देखते हैं तो एक अलग अवतार में होते हैं. जब फोन पे बात करते हैं तो एक अलग होता है, स्पीकिंग कर रहे थे, सिखा रहे होते हैं तो एक अलग अवतार होते हैं. तो इतने सारी ये चीजें में इनिशिएटिव्स लेते हैं. सो लेट्स हियर अबाउट ऑथर शेरी कि ये कौन है, क्या इनका जर्नी रहा. सो ऑथर शेरी, ही से कि आई एम नो पब्लिक एक्सपर्ट बट आई एम एन एक्सपर्ट public speaking student. This is what author Sherry says. So he is working as a renowned public speaking coach and TEDx. जी हाँ दोस्तों, वही TEDx जहाँ पे लोग जाने को तरसते हैं. He is the TEDx speakers coach as well. बहुत बार ये TEDx speaker as a TEDx speaker जा चुके हैं, बन के इतने सारे स्टेजेस पे, जोश टॉक्स में जा चुके हैं. और इनका खुद का एक स्टेज है MS टॉक्स, जहां पर लाखों लोगों की रीच है. बहुत सारे हजारों लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं और हजार लोग सीख रहे हैं. बहुत सारे ये इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं. He has worked with corporate executives, celebrities, serial entrepreneurs through personal coaching, and he loves to contribute ideas through group trainings with multinationals and corporate. He has witnessed more than 5,000 public professional speakers live on stage. Wow. And understood what it takes to the best in the business. Plus, he provided a speaking platform and created many public speakers in India as well as abroad. And he has witnessed they are working with Fortune 500 companies. Wow. जो इनके clients हैं दोस्तों, they are working with Fortune 500 companies. I am getting goosebumps कि ये इन्होंने, he's like a one man army. इन्होंने कितना कुछ किया है. And he has a mission. Wow. I love his mission. I am also able to contribute here. So इनका mission है कि भाई 2030 तक 1 million speakers को इनको public speaker बनाना है. Let's a round of applause.
वाओ, आई मीन दिस इज सच अ नाइस जेस्चर कि एक आपने सोच है, इंटेंशन है, और वो चीजें मेरे को एकदम क्लियरली दिख रही हैं, क्योंकि हजारों लोग तो ये पहुंच चुके हैं, इनकी जो वो है रीच कह लो या फिर जो इंस्पिरेशन कह लो, वो लाखों लोगों तक इतनी जबरदस्त जा रही है कि जस्ट इनके लोग रिकॉर्डिंग्स देखते हैं ना, दे गेट इंस्पायर्ड, और ये बहुत सारे बड़े इंटरेस्टिंग गेम्स लेकर आते हैं, चैलेंजेस लेकर आते हैं, तो और कंपटीशंस लेके आते हैं। आई आल्सो गॉट अ चांस टू होस्ट फ्यू ऑफ हिज शोज, एंड इट वाज इमेंसली अमेजिंग एंड ग्रेट। सो ओवर टू यू अथर शेरी भाई, कुछ अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए, और हम फिर कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गौरव फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तिनका हूँ तो क्या हुआ, तिनका हूँ तो क्या हुआ, वजूद है मेरा, तिनका हूँ तो क्या हुआ, वजूद है मेरा, उड़ उड़ कर हवा का रुख तो बताता हूँ। फ्रेंड्स, वाह वाह, क्या बात है। a very warm वाह, good evening to all of you, and गौरव जैन ने मेरे बारे में आपको बहुत कुछ बताया है। मैं आज आपके साथ दिल से बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, ऑफ द स्टेज एंड ऑन द स्टेज, बिकॉज वही मेरा एक स्पेशलिटी है। भगवान ने मुझे वो हुनर बख्शा है, भगवान ने मुझे वो एक कृपा दी है, एंड आई एम ब्लेस्ड विद दैट स्किल वेयर आई कैन स्पीक टू लॉट ऑफ पीपल and I can connect with a lot of people. So I'm ready to rock with all these terrific people out here. And it's a great honor to be at Music Veranda. I would like to thank Anila ji and Gaurav Jain ji and all other prestigious members of Music Veranda for having me here and creating such a wonderful platform जहाँ पर हम बात म्यूजिक की कर रहे हैं। मेरा म्यूजिक से बड़ा पुराना ताल्लुक है गौरव। तो हाँ जी, मैं जब बचपन में, आई थिंक बचपन क्या मतलब, जब होश संभाला 13 साल का था, तो उस टाइम पैरेलल पैंट पहनने का जमाना था। पैरेलल पैंट, अगर आपको पता हो, तो मैं पैरेलल पैंट यस, पहनता था और मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। अब 13 साल का लड़का, स्कूल जाने वाला, लड़की से प्यार हो गया, तो अब वो लड़की देखती नहीं थी। अब वो लड़की देखती नहीं थी तो फिर गाने लिखना शुरू, शायराना शुरू, लिखना शुरू। अब लिखना शुरू तो फिर गाना भी शुरू, फिर गाने प्यार मोहब्बत के, लव रोमांटिक सॉन्ग्स, और फिर मैंने जगजीत जी की गज़लें सुननी शुरू कर दी। अरे बाप रे, क्या मेरे ऊपर ऐसा फितूर चढ़ गया प्यार मोहब्बत इश्क का, मुझे समझ ही ना आए। और बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने अंग्रेजी में एक वर्ड समझा कि साहब जी, इसको तो इनफैचुएशन बोलते हैं। आप इनफैचुएशन के शिकार हैं और आप इसको थोड़ा ठीक कीजिए और समझिए कि ये वन साइडेड अफेयर नहीं होना चाहिए, टू साइडेड अफेयर होता है, तभी लव होता है। तो जब मैं ये सब चीज़ों को समझ रहा था, तो उस वक्त तक मैं गाने बहुत गाता था और मैं गुनगुनाता रहता था, अलग अलग सिंगर्स को सुनता था। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये रहा कि मैं इंग्लिश गाने बहुत सुनता था, तो मुझे इंग्लिश गाने कुछ याद भी हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स याद है मेरे को। अरे वाह, क्या बात तो है। तो वो सब मेरे साथ चलता रहा ये, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि म्यूजिक मेरी लाइफ बदलेगा। और आपको मैं एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, करीबन 5 या 6 साल पहले जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, बिल्कुल फोकस होके बॉडी बिल्डिंग करता था, तो मैं म्यूजिक लगाता था कान में और मैं अपने ब्रेन केमिकल को शिफ्ट कर लेता था। अब ब्रेन केमिकल शिफ्ट कैसे होते हैं एक्चुअली में, जो आप बार बार करते हो ना, गुस्सा, जो बार बार इमोशन चेंज होता है, आपके मूड स्विंग होते हैं, हाँ तो जी, सारा का सारा कनेक्शन आपका म्यूजिक से आप चेंज कर सकते हो। है ना कमाल की बात, इंटरेस्टिंग है बहुत। इसीलिए आप कभी कोई सूदिंग म्यूजिक सुनो, कोई पुराना गाना सुनो, कोई रॉकिंग सॉन्ग सुनो, कोई एल्बम सुनो, कोई हिंदी सॉन्ग सुनो, अरे भाई हर एक सॉन्ग में अपनी एक ताकत छुपी हुई है। उस ताकत को महसूस करो, उसकी खुशबू को महसूस करो, उसको दिमाग में लेके आओ, उसका नशा करो, और उसके बाद देखो, हा क्या मजा आता है यार। गाना गा के और गाना सुन के जो मजा आता है, वो तो शराब पी के भी नहीं आता यार। वो तो मजा गाने गा के ही आता है, और वो मजा तो ना हुक्का पी के भी नहीं आता, ना वो क्या पान बात खा है। के आता है। वो यस, मजा तो गाना गा के ही आता है। और एक बात बताता हूँ बड़ी कमाल की, एक बार नुसरत फतेह अली खान के साहब का ना गाना चल रहा था मेरी गाड़ी में, तो गाना मेरे ख्याल से इस कौन से वाला, आफरीन तरह, आफरीन? हाँ नहीं नहीं, आफरीन आफरीन नहीं, अखियां उड़ीक दियां हाँ, दिलवा जमारदा, आजा परदेसिता, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा,
आ जा तेनू अखियां उड़ेक दिया। अब ये गाना जब चल रहा था ना, मेरी गाड़ी की स्पीड 40-45 की थी हिल पे। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। देखो मेरी तरह कॉपी मत करना, रिस्की होता है, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन मैंने बढ़ा ली स्पीड, और उसके बाद जो मैंने गाना सुना ऊंची आवाज में, आहा, आई वॉज लिविंग दैट मोमेंट। ये होती है लाइफ। लाइफ ऐसे जीना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और मैं आपकी बात से कई बार कुछ गाने ऐसे होते हैं ना, एकदम से हमें कहाँ पास में ले जाते हैं, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, वी रीलिव दैट मोमेंट। तो वाओ, रियली। और जब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा हिल्स पे जा रहे हैं, और कई बार हमारे मूड ऑफ भी होता है, तो एकदम से गाना सुना रहे हैं, यार वाओ। तो यू आर विद योर ओन सेल्फ, और रोमांटिक हो केमिकल का जाता जो है सर, आपने बताया। माहौल माहौल यस। रोमांटिक हो जाता है। ओ आप यस। गाने सुनो, एक अलग ही फील आता है। आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट लेवल game where you are actually listening to the song and you are living the imagination. सॉन्ग्स के साथ आप इमेजिनेशन लिव करते हो। ट्रू। राइट, राइट, राइट। तो एक काम करते हैं शेरी भाई, एक गाना हो जाए आपसे कुछ हल्का फुल्का। वैसे हमारे पास और भी लोग हैं, लेकिन आपका कोई फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, बताइए। ऐसा कोई, ऐसा नहीं है कि 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। जो मुंह पे चल रहा होता है वो फेवरेट बन जाता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने सुनने का मन करता है और सुनाने का मन भी करता है। तो मैं आपको एक इंग्लिश गाने से शुरुआत करता हूँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ फिर जी। मेरे पास पंजाबी भी कलेक्शन है और मैं गजलें भी खूब गाता हूँ। अरे वाह। तो मैं आपको इंग्लिश गाना सुनाता हूँ। If I have to live my life without you, leave me. The days would all be empty. The night would seem so long. With you, I see forever all so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. You may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. वाह, ये पता है, ये Awesome. मेरा भी फेवरेट गाना है। और ये मतलब समुंदर के पास में है। देयर वाज अ गाय एंड अ गर्ल, एंड हैंड इन हैंड, एंड देन दे आर मूविंग, एंड देन दिस गाय इज सिंगिंग नथिंग ऑन द चेन। वाओ, आई रियली गॉट गूज़बम्प्स। आप एकदम से बिल्कुल दिल से गा रहे हैं। और वाओ, सिंपली वाओ, थैंक यू सो मच। और चलिए हम अपना क्वेश्चन का भी सिलसिला साथ साथ शुरू करते हैं, और बीच बीच में हम थोड़ा बहुत म्यूजिकल टच भी इसके अंदर देंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि जो आपके ये MS टॉक्स की जर्नी है, ये कैसे शुरू हुई? बिकॉज हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, रात को सोते हुए, नहाते हुए, कभी हम वैसे बैठे हैं ड्राइविंग करते हुए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि उसको एक्चुअलाइज कर पाते हैं। राइट। तो MS टॉक का सबसे पहले एकदम द नाम भी और ये जर्नी, द वेरी वेरी स्टार्टिंग, कहाँ से क्या शुरू हुआ? MS टॉक्स की जर्नी शुरू हुई मोटिवेशन स्पार्कल्स ग्रुप से। ये करीबन 11-12 साल पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करा, जब बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप के बारे में पता नहीं था। अच्छा, उस वक्त इसमें 3 मेंबर थे। आज इसमें करीबन 2,20,000 मेंबर ग्लोबली हैं हमारे अलग अलग। वाह, 2,20,000 जस्ट 3 लोगों से। और ये ऑर्गेनिक कम्युनिटी बनी हमारी। हमने कोई इसमें पेड मार्केटिंग का इस्तेमाल नहीं करा। तो मैं शुरू से यही चाहता था कि हम कुछ इन्फ्लुएंशियल करें, और वो अपने आप होता चला गया। तो जैसे बीज बोते हैं आप, बीज के बाद फिर वो धीरे धीरे पत्ता निकलना शुरू होता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो पौधा पेड़ बनता है, फिर उसमें फल आते हैं। तो वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने जब मोटिवेशन स्पार्कल शुरू करा, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं मोटिवेशन को कैसे मोनेटाइज करूंगा। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मोटिवेशन को मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है। तो मैंने कई लोगों को देखा, कोई मोटिवेशन के कोट्स लिखे हुए टी शर्ट सेल करता है, कोई ब्लॉग्स पे
एफिलिएट मार्केटिंग करता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। एक्चुअली मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना चाहता था, मैं मोटिवेशनल टीचर जरूर हूँ लेकिन मैं स्पीकर नहीं हूँ, मैं कीनोट प्रोफेशनल स्पीकर हूँ। तो ये बहुत डिफरेंस है स्पीकिंग बिजनेस में, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है, उनको लगता है ऑथर शेयर ही मोटिवेशनल स्पीकर। अरे भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं मोटिवेशनल टीचर हूँ। कोई मेरे साथ बात करता है मैं उसको मोटिवेशन दे सकता हूँ, रियल लाइफ प्रैक्टिकल इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करता हूँ मैं। लेकिन जो मेरा सिलसिला था वो ऐसे शुरू हुआ। तो कई सारे लोग जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ गए, मैं रोज उनको इंटरनेशनल थॉट लीडर्स के वीडियोस, ब्लॉग्स, इमेजेस, फोटो कोट्स में शेयर करता था। तो ये वो समय था, वो दौर था जब मैं खुद भी मोटिवेशन लेता था और लोगों को बांट भी देता था। तो ऐसे करते करते ये ग्रुप्स बनने शुरू हुए, बहुत बड़ा एक फैमिली बन गया है। कमाल की बात गौरव ये हुई, जो मुझे सबसे अच्छी अचीवमेंट लगी इसमें, वो ये हुई हाँ कि जी। लोगों ने जब मोटिवेशन पढ़ पढ़ के अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करा। मुझे अच्छी तरह याद है, किसी का ब्रेकअप हुआ था हमारे ग्रुप में, उसका ब्रेकअप रिजॉल्व हो गया, हस्बैंड वाइफ का। एक आदमी था, उसको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था, उसकी प्रॉपर्टी में लॉस हो गया था, उसको 3 या 4 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। उसने वो ग्रुप में लिखा बकायदा, और उसने बकायदा लिखा कि मुझे यहाँ के ग्रुप से बड़ा मोटिवेशन मिला, मुझे गाइडेंस मिला। तो इस तरह के जब एग्जाम्पल्स आने शुरू हुए तो कुछ ग्रुप के मेंबर्स ने बोला कि इसको फिजिकल भी लेके चलो। मेरा मन ये था कि मैं कुछ नया नाम रखूं, लेकिन मोटिवेशन स्पार्कल्स के नाम दिल से निकला हुआ था, ये इतना फेमस हो गया था। तो सबने बोला सर आप MS कर दो, इसको MS टॉक्स कर दो। तो मैंने बकायदा इसका पोलिंग कराया। तो उस वक्त हमारे जो मेंबर्स थे 85% 86% मेंबर्स ने मोटिवेशन स्पार्कल्स को वोट किया। इंडिया इंटरनेशनल टॉक्स IIT ये नाम भी मैंने सजेस्ट किया था। मोटिवेशनल टॉक्स, मोटिवेशन स्पार्कल टॉक्स और इंडिया इंटरनेशनल टॉक्स, ये 3 नाम सजेस्ट किए थे। 86% करीबन वोट आए मोटिवेशन स्पार्कल टॉक्स के नाम से। अब आइडिया को मुझे बड़ा करना था, तो मुझे नहीं पता था इसको नेक्स्ट स्टेप कैसे लेके जाना है। उसी दौरान मैं क्या कर रहा था, मैं बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाके वर्कशॉप्स अटेंड करता था। तो वर्कशॉप सेमिनार अटेंड करता था, तो मैं देखता था लोग बोल कैसे रहे हैं। तो मैंने अलग अलग स्पीकर्स को बोलते हुए सुना, उनको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो सुना। वहां से मुझे एक एनर्जी मिलती थी, मुझे एक आइडिया मिलता था, बिकॉज मैं बहुत पैशनेटली सब चीज़ों को सीख रहा था, ऑब्जर्व करता था, जो मैं आज भी करता हूँ। तो मैंने एक बार एक सेमिनार अटेंड किया ताज होटल में, यहाँ पे द्वारका में, दिल्ली में। और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे जो पब्लिक स्पीकर था जिसने ऑडियंस में क्वेश्चन दिया, तो जब वहाँ पे जो हेल्पर था वो माइक लेकर के आया, तो 2 आदमियों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई। वो कहता है पहले मैं बोलूंगा, दूसरा कहता है पहले मैं बोलूंगा। वो माइक को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। इतने में तीसरा खड़ा हुआ, वो कहता है भाई साहब आप दोनों आपस में सुलटा लीजिए, पहले मैं बोल लेता हूँ। तो वो बोलना शुरू हो गया। ये बढ़िया है। तो मैं जब वहाँ मैं जब वहाँ बैठ के ये सब देख रहा था मेरी आंखों के सामने, मुझे एक चीज वहाँ रियलाइज हो गई, यार माइक की तो बड़ी जरूरत है लोगों को। एवरीबडी इज सो फैसिनेटेड अबाउट टॉकिंग ऑन द माइक। ये तो कुछ चल रहा है यहाँ पे, जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। वहां से मैंने इस आइडिया को पकड़ लिया और आई थॉट कि let's give a platform to the common man of India. Let's give the voice to the common man of India. और वहाँ जन्म हुआ MS Talks India का. So today we are creating an ecosystem to promote presentation literacy, public speaking, communication in India. I am on a mission to create 1 million public speakers in India by 2030. हम लोग 72-73 इवेंट्स कर चुके हैं पिछले 4 साल की जर्नी में। अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के जाके हमने इवेंट्स किए, दिल्ली में बहुत बड़े इवेंट्स किए। वी आर द फर्स्ट organization in India who has done international public speaking championship where speakers from all over the world were invited. ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ इंडिया में, एंड वी डिड दिस इवेंट इन लास्ट ईयर। और गौरव आप वहाँ पे एंकर भी थे, आपको याद हो, इंटरनेशनल Yes, yes. चैंपियनशिप। Yeah. It was a super successful event. I was blessed to be hosting that event, and wow, it's all about taking initiatives. Yeah, true. And in fact, we were covered by national media all over. कोई ऐसा न्यूज़पेपर हिंदुस्तान का नहीं बचा जिसने हमें कवर नहीं किया। MS Talks has been covered by all the national dailies. कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर का नाम लीजिए, they have covered MS Talks. So we are blessed कि लोग हमारे बारे में अब जानते हैं। We are a national platform and I have given platform to many aspiring and professional orators जिनको platform कोई नहीं दे रहा था। क्योंकि अगर आप आज कहीं बोलना चाहते हैं, अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आप एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए तलाश करेंगे तो उसमें जाने में समय लगता है। MS Talks ने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म सेलिब्रिटीज के लिए चल रहे थे, उसके बीच का जो प्लेटफॉर्म था, जो एक कॉमन मैन को चाहिए था, MS Talks ने वो काम करके दिखाया। और हमारी बहुत अच्छी टीम है जो हम सब मिलके काम करते हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम इस एरा में जी रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कम्युनिकेशन का बेस्ट टाइम है। आप इसे अपना फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं।
जैसे कि आई एम इन द फुल टाइम बिजनेस ऑफ स्पीकिंग. वाओ, थैंक यू सो मच एंड दिस इज एन अमेजिंग जर्नी. मतलब इट्स नॉट इजी, थैंक्स सौरभ. क्योंकि आपने 10-11 साल का पूरा समय बताया और कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्ट्रेंथ मिलती रहती है. जब आपने बताया कि किसी का ब्रेकअप हो गया था, वो रिजॉल्व हुआ, किसी को पैसे कहीं से वो जरूरत थी, वो उसको मोटिवेशन मिली, तो इट मैटर्स अ लॉट. मतलब हम सोचते हैं कि हमें पूरी दुनिया में कई एक एक इम्पैक्ट करना है, लेकिन मिनिमम साइड पे एक एक पर्सन की लाइफ में भी अगर वो इम्पैक्ट हो पा रहा है तो it is really worth. And now it is in lakhs, so wow, kudos to you, author Sherry. And आपने कम्युनिकेशन का वर्ड कई बार यूज किया और इट इज अ वेरी पावरफुल वर्ड. अगर हम लिटरल मीनिंग इसका जानना चाहें कि एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो यही है कि कम्युनिकेशन में यू एंड आई पहले से छुपा हुआ है. इसकी स्पेलिंग में यू एंड आई, कम्युनिकेटिंग or encoding decoding of the language of the sign language is what communication is all about. And most of the time people misunderstood communication. It's not about vocal communication only, it's about listening. Listening is one of the most important aspect of communication, because if you will not listen properly, then you will not be able to communicate properly, right? True. तो आप जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में. हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन जब डेली लाइफ में करते हैं, अपनी बात एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो हम सोचते हैं बस ये हो गया. लेकिन एक्चुअली में कम्युनिकेशन में बहुत सारे ब्रांचेस हैं. तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन इज असर्टिव कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम हाँ को हाँ बोलते हैं और ना को ना बोलते हैं, जहाँ पर हम पोलाइट रहते हैं, असर्टिव रहते हैं और अपनी बात को आराम से रखते हैं. दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ communication, assertive communication. So I resonate communication with love, God, and air. You cannot see them, but you can feel them, and their power is infinite. As I always say, जैसे मैंने अपने TEDx talk में भी बोला था, as the baby is to her mother, communication is to your personal success. तो आपके success में communication बहुत जरूरी है. In fact, 3 things I tell everybody, and I'll tell all the viewers of Musical Veranda also. The first thing, if you want to be successful in your life, if you want to achieve personal success in any form, you should do 3 things. Number 1, you should achieve communication. You should know how to communicate your ideas, how to express yourself, how to speak in public. The second, you should have healthy relationships. You should have good relationship, strategical relationship where you can build up your relationship smartly to carry on the momentum in your work. And thirdly, you should have great networking skills. We all know that Gaurav Jain, GJ, is a great networker. We should learn from GJ. So networking skills are extremely important. Communication, relationships, and networking. And you know what? Why I'm sharing these 3 things with you? Because there is something common in all these 3 things. Communication itself. If you're not able to communicate properly your ideas, if you're not polite, then you will miss out something very big in your life. In fact, you will see most of the great leaders in the country or in the world, you will see them communicating their ideas in brevity. Effective communication is about brevity. In fact, Jesus also said, follow me. That's it. Follow me included everything. Now that's power of communication. Everybody followed Jesus. True. So you see, when you are doing communication, you need to understand the art and science behind the communication. And when you understand the art and science behind the communication, you can use silence. You can use silence as a part of the communication. Wow. You can use pause as a part of the communication. Now that's completely up to you how you want to use it. And I say, how you, yes, you, watching me in front of the screen right now. Don't smile. I'm talking to you. How you can talk to anyone. That's what you need to learn. Communication. शेरी भाई, हम लोग आंखों से बोलते हैं, बातों से बोलते हैं, हमारे बोलते बोलते हाथ भी हिलते हैं, उससे भी बोलते हैं, और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, हम बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बोल देते हैं, राइट? सब कुछ कहते हैं कि नो रिस्पॉन्स इज आल्सो अ रिस्पॉन्स, राइट? तो क्या ये सही है? इसके बारे में कुछ बोलिए, क्योंकि अभी आप जो इशारे कर रहे थे ना और वो चीजें बता रहे थे, दिस इज सो पावरफुल. मतलब
इट वाज गिविंग मी सो मेनी आइडियाज कि हाँ यार, कई बार हम कुछ लोग चिल्लाते भी हैं लेकिन सामने वाला कहता है कि मेरे को तेरी बात कोई समझ में नहीं आ रही है। राइट, जब आप हमारी वो ही नहीं समझ पाए साइलेंस, तो भाई बातें क्या समझेंगे। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये जो कम्युनिकेशन की सारी चीजें हैं, और आप यू आर द एक्सपर्ट इन दिस। ये देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हैज टू बी डन विदाउट ईगो। देखिए, अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं है, पर हर किसी में इसकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है। तो आपको अपना ईगो कम्युनिकेशन से हटाना है, अकड़ हटानी है। कम्युनिकेशन में ईगो का कोई काम नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को आप जब कम्युनिकेट करते हुए देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बहुत सारी ईगो है उनके अंदर। So when you learn to communicate without ego, you will definitely see drastic changes in the way you express yourself, in the ability how you communicate with people. Secondly, as you rightly said, these are the different strengths of communication, I would say, or I would say branches of communication. Non-verbal, how you smile, how you become sad, expressing your emotions, using your gestures, the power of silence, and the pauses. ये सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत जरूरी हैं। मेरी मम्मी हमेशा एक बात बोलती होती थी कि बेटा, पंजाबी में बोलती होती थी, पुत्र एक चुप ते 100 सुख। कई बार चुप रह के भी आप कम्युनिकेट करते हो, क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आप नहीं बोलते तो उसका सुख प्राप्त होता है आपको। इज दैट अ कम्युनिकेशन? यस इट इज। वेदर यू रिप्लाई और यू डोंट, इट्स अ कम्युनिकेशन। यू ओन दैट। वाह, क्या बात है। मतलब आई वाज लाइक सो लॉस्ट इन योर दीज थिंग्स। अमेजिंग। अच्छा, मतलब चाहे वो मेरे साथ है, मेरे साथ तो कई बार ऐसे होता है, सभी के साथ ऐसा होता है कि चाहे हम स्टेज पे हैं या रेगुलर अपने क्लाइंट से या फ्रेंड से या रिश्तेदार से या नॉर्मल अपनी जिंदगी में जो हम बात कर रहे होते हैं ना, कुछ चीजें हम एकदम से रुक जाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार सामने वाले को बुरा ना लग जाए, पता नहीं वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। आई मीन यू कैन रीथिंक ऑफ योर कॉलेज डेज एज वेल कि यार मैंने प्रपोज कर दिया, पता नहीं वो हाँ बोलेगी कि नहीं, या मैंने डील की बात कर रहा हूँ कि हाँ जी वो पता नहीं हमें ऑर्डर देगा कि नहीं, या फिर मैं क्लाइंट से फर्स्ट टाइम मिलने जा रहा हूँ, पता नहीं उसको मैं पसंद आऊंगा कि नहीं, हमें ऑर्डर देगा। तो ये बहुत सारी बातें चीजें होती है, मन में ही रह जाती हैं। तो कि भाई हम उसको बोले, ये वाली चीज बोले कि नहीं बोले, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई देखो, सही ढंग से बात कर ली जाए तो फैसले हो जाते हैं। सही ढंग से बात कर ली जाए तो फैसले हो जाते हैं, और अगर ना की जाए तो फासले हो जाते हैं। आप सही ढंग से बात अगर करना सीख जाएं, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाएं, तो आप गर्लफ्रेंड को भी इम्प्रेस कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट को भी इम्प्रेस कर सकते हो, आप घर में बैठे अपनी बूढ़ी माँ को भी इम्प्रेस कर सकते हो, आप अपने छोटे बच्चे को भी इम्प्रेस कर सकते हो, और आप अपनी अर्धांगिनी, आपकी बेटर हाफ को भी इम्प्रेस कर सकते हो। कम्युनिकेशन की इतनी पावर है। बट कई बार हम डर जाते हैं ना कि वो बुरा ना मान जाए या फिर वो मना ना कर दे। तो ये जो ना माइंड में ये चीज चलती रहती है कि पता नहीं, मतलब इट्स अबाउट, कई बार ये तो कि हम दिल की बात भी नहीं कह पाते कि दिल में हमारे कुछ नहीं है, लेकिन वो मतलब दिल से यहां तक नहीं आ पाते कि पता नहीं यार उसको कैसा लगेगा। तो हाउ टू ओवरकम दैट? मे बी इट्स अ प्रोस्क्रेस्टिनेशन, या फिर वही है कि हम शायद ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं कि हम कह ही नहीं पाते, और कई बार तो पूरी जिंदगी हो जाती है या आधी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन जो मेन बात होती है वो ही नहीं कह पाते, बाकी सारी चीजें बोल देते हैं। सो वो कॉन्फिडेंस या वो चीज को ठीक कैसे करें? ये मेरे ख्याल से कुछ ब्रेन के अंदर ही केमिकल है, हमारा माइंड सेट है बचपन से था कि ये मत करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ डर लगता है, यहाँ भूत है, ये करंट लग जाएगा। राइट, तो वो एक अंदर जो वो डर है, या फिर कि भाई बुरा ना लग जाए या वो मना ना कर दे, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब योर थॉट। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट्स जितना आप माइंड में रखोगे, जितना ज़्यादा आप उलझोगे चीज़ों में, उतनी ज़िंदगी उलझती चली जाएगी। और अगर ज़िंदगी को सुलझाना है, तो ज़िंदगी को आसान बनाना है, तो उसके लिए अपनी बात को रखना सीखना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जो दिल में है वही आपके मुंह पे होना चाहिए। देखो, ये सुनने में कितना आसान लग रहा है, जो दिल में है वो आपके मुंह पे होना चाहिए। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ज़िंदगी में जब ये रियल टाइम करना पड़ता है ना, बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है ये टफ पता है क्यों होता है? क्योंकि इंसान सच नहीं फेस कर पाता। सच ही नहीं फेस कर पा रहा इंसान। वो देखो, पक्षी जा रहा है, सच ही नहीं फेस कर रहा।
वो महसूस ही नहीं कर रहा, वो जी नहीं रहा वो मोमेंट, वो लाइवली नहीं है, वो लाइवलीनेस ही खत्म हो गई है, वो शाइनेस आ गई है। वो शाइनेस क्यों आई है मालूम है? वो कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आई है मालूम है? उसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्योंकि आप कुछ चीजों को उस ढंग से नहीं देख रहे जिस तरह से भगवान आपको परोस रहा है। डोंट create your own presentation, look at the presentation with which God has given it to you। आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। अगर आप अपनी दृष्टि को हटाकर भगवान की दृष्टि को भी समझना शुरू कर दें, कम्युनिकेशन बड़ा आसान है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप असर्टिव कम्युनिकेशन करना सीखो। ये एक बहुत बड़ा स्किल है एक्चुअली में। आपकी जो टोन है ना, टोन, ये टोन बड़ा कमाल करती है। ये टोन, यस आई एग्री, यस। अगर आप किसी को डांट भी रहे ना, क्या बात है तुम्हें ठीक से काम करना नहीं आता, क्या बात है तुम्हें ठीक से काम करना नहीं आता, देखो दोनों बातें मैंने सेम लैंग्वेज में बोली है, सेम वर्ड्स बोली है, लेकिन जब मेरा टोन तेज हुआ तो उसका मतलब और मायने और उसका इम्पैक्ट क्रिएट डिफरेंट हो गया। ठीक है ना? अगर हम ये आर्ट सीख लें कि हम कम से कम वर्ड्स में अपनी हल्की टोन में कोई बात कह दें, ये बड़ी मास्टरफुल चीज है। तो ये आर्ट सीखनी पड़ेगी। ये आर्ट होती है परसुएसिव आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मैं इसको सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ। हाँ जी। इसमें आप अपनी बात भी कह जाते हैं और सामने वाले को कहते हैं ना कि इशारा भी दे गए। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और तीसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कम्युनिकेशन करना है ना, सच में करना है, सीखना चाहते हो, हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी तरफ मत देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीखना चाहते हो? अगर आप कम्युनिकेशन करना सीखना चाहते हो ना, तो बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, और पता है किसके साथ बैठो? देखो बुरा मत मानना, फिर मुझे डांटना मत। फकीर के साथ बैठो, भिखारी के साथ बैठो, वो आपको सिखाएगा कम्युनिकेशन कैसे होता है। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ गई ना आज, तो आज आप हुक्म का इक्का पकड़ के ले गए ऑथर शेरी से, वरना आप सोचते रह जाओगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपने जो बातें कही है ना, वो मैं कई जगह रिलेट कर पा रहा हूँ। और एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, एक गाना सुनते हैं। जो मेरा ये सवाल था ना कि बुरा ना कर जाए, तो इससे रिलेटेड एक किशोर कुमार का एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बीच में एक दीपक दा है, मन्ना दे के परिवार से, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, किशोर कुमार के बहुत अच्छे फैन हैं। और हमारे लिए तो यही किशोर कुमार है म्यूजिक बरांडा के। तो कुछ लाइनें इसकी मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि दीपक दा आप गाइए। ओवर टू यू। ज़रूर गौरव जी, थैंक यू सो मच। शेरी जी, बड़ा सुन के बहुत मज़ा आया। और मैं भी थोड़ा थोड़ा मेरे को पब्लिक स्पीकिंग आती है, और मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था। जिन ये सन था 2009 2010 11 की। मैं नाम लेना सही नहीं समझूंगा इस प्लेटफॉर्म में। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा टिप्स दिया था, और मैं रिलेट अच्छे से कर रहा था एग्जैक्टली व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सो बड़ा अच्छा लगा आप सुन के, और मैं बहुत क्लोजली फॉलो करूंगा। मैं ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका हूँ आपको, और मज़ा बहुत आएगा आगे चल के, मुझे ये उम्मीद है। दीपक जी, इट्स माय ग्रेट ऑनर। मैं भी आपको सुनने के लिए बेताब हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं ट्रैक सेट करता हूँ, इट विल टेक अबाउट फ्यू सेकंड्स। सो वन मोमेंट प्लीज, थैंक यू। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत
रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। Thank you so much, Deepak Da. This is वाह, really वाह, क्या बात। amazing. दीपक जी बहुत कमाल, थैंक यू। बहुत मजेदार। All right, so back to मन जुड़ author गया। Sherry after this quick little sweet break. Lovely song by Deepak Da. अच्छा शेरी भाई, मेरा जो अगला सवाल है कि जैसे आपने जब ये शुरुआत करी, कम्युनिकेशन को समझा, तो आपने खुद ने भी कोई कोर्स किया है या आपको जिंदगी ने ही सब कुछ सिखाया? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि काफी लोग आजकल सर्टिफिकेट्स भी देते हैं कि भाई आपने 1 साल का 2 साल का कोई डिग्री ले ली है, और एक चीज होती है कि हम लोगों को पहले कॉपी करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा स्टाइल बन जाता है, राइट? तो आपका कौन इंस्पिरेशन है, मतलब हु इज योर गुरु, योर मेंटर, या फिर आपको वो जो पहला एक थॉट आया था कि यार क्या जबरदस्त, ये कितना जबरदस्त गाते हैं, मतलब बोलते हैं स्टेज पे, या वैसे मैं कब ऐसे बोलना शुरू करूंगा, वहां से कुछ हमें बताइए कि व्हाट वाज ऑल दैट जर्नी। देखो इसमें मैंने कारमाइन गालो को बहुत फॉलो करा है कम्युनिकेशन में। किनको? आई मिस द वर्ड। कारमाइन गालो इज वन ऑफ द लीडिंग कम्युनिकेशन एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड। कारमाइन गालो वही शख्स हैं जिन्होंने द सीक्रेट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन सीक्रेट्स ऑफ स्टीव जॉब्स ये किताब लिखी है। द टॉप 9 सीक्रेट्स ऑफ टेड टॉक ये किताब लिखी है। मैं कारमाइन गालो को फॉलो करता हूँ और मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। इनफैक्ट मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी हैं, सारी मतलब सारी, और कई किताबें मैंने 2-2 बार भी पढ़ी हैं। तो एक तो वहाँ से मेरा कम्युनिकेशन का जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हुआ। सेकेंडली मैंने जब अपने आसपास के माहौल को ठीक करना शुरू करा, मैं पहले बहुत फ्लैम्बार्ड हुआ करता था, आज भी हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, मुझे बहुत जल्दी क्रोध आता था। तो वो सब चीज़ों पे कंट्रोल पाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है लाइफ में। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना, क्योंकि ये ब्रेन केमिकल और आपके जो इमोशन होते हैं ये आपका न्यूट्रिशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आप इस बात को समझ रहेंगे तो आप मेरी बात से बहुत कुछ पा भी जाएंगे। तो आपका जो न्यूट्रिशन है और आपका जो इमोशन है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप कभी अपनी डाइट से चीनी हटा के देख लीजिए, देखिए आप कितना इरिटेट फील करेंगे, आप ना चाह करके भी इरिटेट फील करेंगे, क्योंकि ये सारा कनेक्शन जो है हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ है। तो आपकी डाइट और आपका इमोशन, इसका कंट्रोल अगर आपको आ जाता है, काफ़ी हद तक आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। थर्डली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत करी है, बहुत लोगों से मुलाकात करी है। जैसे गौरव जैन, आप इतने अच्छे एंकर हैं, अनिला जी इतने अच्छे होस्ट हैं, तो ऐसे ही मैं भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ करता हूँ लोगों के, मैं उनसे सीखता हूँ। मैं सुनने में भरोसा रखता हूँ। स्पीकिंग में इसका ये मतलब नहीं है मैं सिर्फ बोलता ही रहता हूँ, मैं सुनने में बहुत बिलीव करता हूँ। आई एम एन एविड लिसनर, आई एम एन एविड रीडर। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से और सुनने से आ जाती हैं। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। कभी कभी जिंदगी में मौका मिले ना, हाँ जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इधर करीब आइए। कभी जिंदगी में अगर मौका मिले तो छत के ऊपर खड़े हो जाना और पार्क में जाके किसी पेड़ को गले लगाना और उससे बात करके देखना, आपको पता लगेगा कैसे होता है कम्युनिकेशन। वहाँ तो आवाज़ ही नहीं होती मेरे दोस्त, वहाँ तो महसूस होता है। और ये महसूस वाला जो कम्युनिकेशन है ना, इसमें बड़ी पावर है। ये बिल्कुल सीधा डायरेक्ट कनेक्शन एनर्जी के साथ है। और भगवान
भगवान की पूजा आप करते हो, क्या है वो कम्युनिकेशन ही तो है। इट्स अ कम्युनिकेशन भाई। आप अभी याद करो भगवान को दिल से, आपको उस कम्युनिकेशन का रिप्लाई ना आए तो मेरा नाम बदल देना। अभी याद करो दिल से, आप कम्युनिकेशन का रिप्लाई आएगा सर, आएगा, 100% आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान को आप दिल से याद करो, कम्युनिकेट करो, ना आए रिप्लाई। भगवान दिखता है आपको? नहीं। ये पावर को समझो, ये पावर को समझो। मेरी माँ मेरी माँ को पता लग जाता मेरा बेटा ऑफिस में बैठ के भूखा है। कैसे पता लग गया? मैंने तो नहीं बताया, बेटा लंच नहीं किया ना अभी तक। अगर मम्मी नहीं किया, आपको कैसे पता लगा? तेरी माँ हूं मैं। माँ को पता लग जाता है। ये कम्युनिकेशन कहाँ से आया? ये किसी बुक में नहीं लिखा गौरव। ये कम्युनिकेशन है सीधा दिल का। ये है महसूस करने का। ये महसूस वाला जो कम्युनिकेशन है, ये बड़ी पावर है इसमें, बड़ी जबरदस्त पावर है। माँ बच्चे की आंतड़ियों से पता लगा लेती है। ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, अवेलेबल है दुनिया में। ये बता रहा चाह रहा हूँ आपको। सिर्फ वो कम्युनिकेशन नहीं है जो हम किताब में पढ़ते हैं और जब भी हम कर रहे हैं, या जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, ये भी है। और फिर संत महापुरुष जो होते हैं ना, हमारे गुरु, हमारे महादेव, उनको तो बोलने की जरूरत भी नहीं होती। ऐसे आंखें बंद होती हैं और आंखों बंद में रिप्लाई आ जाता है। खत्म, हुआ ही नहीं कम्युनिकेशन, तेरे को पता भी नहीं लगेगा, पर हो गया जो होना था। निगाहें उनसे मिलती हैं जिनसे कुछ ताल्लुक होता है। ये ताल्लुक की बातें हैं, ये गहराई की बातें हैं। अपने अंदर जाना पड़ता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये जब ये स्टेजेस आपकी लाइफ में आ जाती हैं, स्पिरिचुअल साइंस सब समझना शुरू कर देते हो ना, ये बड़ी कमाल की चीजें हैं। जहाँ के शहंशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, मिला तुझसा मुझे मुर्शद, मेरी तकदीर अच्छी है। ये जब आपको बातें समझ में आएंगी ना, कम्युनिकेशन आपके रग रग में आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे आंखें बंद करी, जैसे महाभारत में देखते हो ना, वो तीर याद करता है, आंखें बंद, एकदम आंख में तीर आ जाता है। अरे तीर कैसे आ गया? कोई मैजिक हो रहा है? मैजिक नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन हुआ है। ही डिमांडेड फॉर इट एंड ही गॉट इट। इतनी पावर है कम्युनिकेशन में। बट सवाल यह है कि आप दिल से करते हो? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ, दिल से करते हो? आप दिल से करते हो तो फिर मजा आएगा लाइफ में। फिर तो देखो, फिर तो बहुत कुछ है। सितारों से आगे जहान और भी है। अभी अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी है। क्या बात है। मतलब मेरा मन कर रहा है मैं सुनते ही जाऊं आपको। आपने इतने सारे हमें मोती हीरे दे दिए ना। वाह, मतलब मेरे को लगता है कि मैं अगर इसका 1% भी समझ जाऊं ना, एकदम उद्धार ही हो जाए जिंदगी में। क्योंकि कई बार क्या चीजें होती है, हमें सब पता होता है लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते। हम पता नहीं किन चीजों में खोए हुए होते हैं। और बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती हैं जो आपने सारी बताई। और सब सारी चीजें डुएबल हैं, ऐसा कोई ना कोई रॉकेट साइंस है। लेकिन ये चीजें शायद हम रियलाइज नहीं कर पाते, या फिर हम इतने बिजी हो चुके हैं अपनी यू नो इस दुनिया में, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, कि जो जरूरी बात है, जो दिल की बात है, वो हम कर ही नहीं पाते और सब चीजें होती रहती हैं। सो रियली सो स्वीट। और कमिंग बैक टू म्यूजिकल थिंग, आपका विच इज योर फेवरेट सॉन्ग दीज डेज? कई बार क्या होता है ना कि हमारे मुंह पे कोई गाना चढ़ा होता है, गुनगुनाते हैं हम लोग। और एक गाना तो एक ऐसा होता है कि यार ये गाना तो मेरे लिए ही बना है। तो ऐसा कोई सॉन्ग? ऐसा ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉन्ग तो मेरे लिए बता पाना बड़ा मुश्किल रहेगा। चैलेंजिंग टास्क मत दे यार गौरव, देख तो एक अभी। काम करते हैं, आप ना, मेरे पास आपके लिए दो चॉइस हैं। आई हैव गॉट दिया विद मी, राइट? तो शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स स्मॉल लिटिल गर्ल, दिया अरोड़ा। और दो चॉइस हैं। एक तो गाना है कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दूसरा चॉइस है दूजी वारी प्यार। विच सॉन्ग यू वांना लिसन? वी पहले विल वाला, हैव इट लाइव कह हियर। दूं तुम्हें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर यही गाना सुनते हैं। दिया, ओवर टू यू। यू नो विच Thank सॉन्ग टू you. सिंग, राइट? Yeah, thank you. अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, वेयर आर यू फ्रॉम? Okay, so I'm from Sonipat और मैं सिंगिंग जब I was 7 years मैं तब से सीख रही हूँ. वाओ। So अभी कितने it's साल के? मेरे को तो अभी भी 7 के लगते हो आप। नहीं 14 अब 15 की हो जाऊँ ओके, October. Yeah. वंडरफुल, गॉड ब्लेस बेटा। ठीक है, Thank ऑल द you. बेस्ट। Okay. कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है,
जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। अच्छा, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। जो बोलो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए। ठीक है, हाँ बताओ ना। ओके, सोचा है तुमने कि रास्ता भुलाए, छेड़े जगह पे कहीं छेड़े डराए। अरे ना रे, अरे ना रे, अरे नहीं रे 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 नहीं नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, क्या है। जो बोलो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। थैंक यू। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लवली, गुरु तुमको माना है, ये बहुत अभी बढ़िया। इसी उम्र में गाने को जी रही हैं, बताओ। गाने को जीना ही तो होता है बस, गाना तो अपने आप निकल जाएगा। वाह वाह, आई वेरी थिंक गुड। इस उम्र में तो हम ठीक से बोल भी नहीं पाते थे और बच्चे गा रहे हैं। तेरा नहीं पता मुझे, मैं बोल देता था। अच्छा, मुझे ये बताइए शरीफ भाई कि टेडेक्स टॉक मतलब जिसने नहीं किया है अभी तक उसके लिए तो बड़ी तोप चीज है। आप कई सारे टेडेक्स टॉक शो कर चुके हो, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था आपका, इट इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग, राइट? वेयर इज योर फर्स्ट क्रश, फर्स्ट लव, यू नो, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट ड्राइव और फर्स्ट एवरीथिंग। तो टेडेक्स टॉक का जो सबसे पहला, वो दिल में कुछ धक धक होती है कि यार पता नहीं मैं कुछ बोलूं, लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, लोग बुरा ना मान जाए, हंसना पड़े, भाग ना जाए दुनिया सारी स्टेज, मतलब ऑडियंस चले गए। तो ये एक डर होता है, मतलब जो बडिंग सिंगर्स हैं या बडिंग पब्लिक स्पीकर्स हैं, तो वो एक पहला जो लम्हा था, माहौल था, वो चीज थी, वो जो थॉट था या कोई किस्सा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई TEDx टॉक देखो डेफिनेटली एक प्रेस्टिजियस स्टेज है। मैं जब पहली बार अपना टॉक देने गया था TEDx पे, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा टॉक सबसे पहले है। उन्होंने मेरा टॉक सबसे पहले रखा है, ये मुझे नहीं पता था। तो ऐसा होता है अक्सर, जब TEDx के प्लेटफॉर्म पे अक्सर क्या होता है कि आपको सबसे पहले तब रखा जाता है, या तो बहुत इन्फ्लुएंशियल स्पीकर है, या आपको सबसे लास्ट में तब रखा जाता है जब आप बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी, आप बहुत लेट आएंगे। तो सबसे पहले और सबसे बाद वाला स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अ, पूरे इवेंट की टोन को सेट करता है। आई एम ग्लैड दैट दे हैव चोजन मी इन दैट वेरी इवेंट। लेकिन जब मेरा नाम अनाउंस हुआ और मुझे पता लगा कि पहला नंबर मेरा है, माइक वाइक सेट लग गया पीछे से, तो मैं एक्चुअली क्या होता है कि TEDx टॉक पे ना आपको अपनी स्पीच तैयार करके जाना होता है। इम्प्रॉम्प्टू भी रहता है लेकिन स्पीच प्रिपरेशन भी होती है। तो मैं कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में जो था मैं तैयार कर रहा था। तो जब मैं पहली बार वहां से पीछे ग्रीन रूम से बाहर गया, आह हा हा हा, मेरे सामने आ गया माहौल। क्या लोग खड़े हुए थे वहां पे, तालियां बज रही थी मेरे लिए। और मैं बिल्कुल स्पॉटलाइट पे, ऊपर येलो लाइट थी, नीचे रेड कारपेट, और मैं अपना आके बोलना शुरू किया। मैंने पहले 20-30 सेकंड ना, सच बताता हूँ, दिल से बता रहा हूँ, घबरा गया था 20-30 सेकंड पहले। लेकिन उसके बाद तो जो वहाँ पे बढ़िया काम हो गया, मतलब तालियां बजी, स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया। और वहाँ के जो चीफ गेस्ट आए हुए थे उसको मेरा टॉक बड़ा पसंद आया। उसने तो मुझे ये भी कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपका टॉक मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी वाइफ साथ बैठी हुई थी, चीफ गेस्ट जो आए हुए थे, वो कहती है कि आपने पूरे इवेंट का सबसे बेस्ट टॉक आप ही का था। तो मुझे जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हुए तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ ठीक करा है आज। TEDx टॉक में क्या होता है, आपको अपना यूनिक आइडिया प्रेजेंट करना होता है। यूनिक आइडिया पहले रिसर्च किया जाता है, पहले उसकी स्टडी की जाती है। तो मैंने एक आइडिया चूज किया, सबकॉन्शियस ग्रेजुएशन। तो सबकॉन्शियस ग्रेजुएशन में मैंने एक लाइन क्रिएट करी, फॉर्मल एजुकेशन एंड्स इन द कॉलेज रूम, फॉर्मल एजुकेशन एंड्स इन द कॉलेज रूम, बट सबकॉन्शियस ग्रेजुएशन एंड्स ओनली विद लाइफ।
तो मैंने जब ये वहां पर बोला, बहुत लोगों को पसंद आया। तो TEDx टॉक में आपका प्रेजेंटेशन और आपकी आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है, अपार्ट फ्रॉम योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से ये सफ़र चला। यस, डेफिनेटली एक्सपीरियंस ऐसा रहा। मैंने एक चीज़ और सीखी गौरव, TEDx के ये पहला टॉक देने के बाद, सीखते तो हम हमेशा ही रहते हैं। तो चीज़ ये सीखी मैंने, स्टेज पर जाने से पहले आपको जितना डरना है आप डरो। अरे ये क्या बात बोल रहे हो आप, तो डरने डराने की बातें करने लगे शरी सर। मैं सही बोल रहा हूँ आपको, स्टेज पर जाने से पहले जितना डरना है डरो। वो डर जरूरी है। डर जरूरी है, क्यों जरूरी है? डर इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टेज की रिस्पेक्ट है। वो आपके मन में आदर है स्टेज का, आपके मन में एक पॉजिटिव फियर है कि आप प्रिपरेशन करके आए हो ना, प्रिपेयर्ड हो ना, पता है ना क्या बोलना है। ऑडियंस का टाइम वेस्ट करने तो नहीं जा रहे, टाइम पास करने तो नहीं जा रहे ना, अपनी आलतू फालतू की कहानी तो नहीं सुनाने जा रहे ना। वैल्यू, वैल्यू योर वर्ड्स, वैल्यू योर टॉक। तो वो स्टेज से जाने से पहले का डर बहुत जरूरी है। बट स्टेज पर एक बार चढ़ गए, एक बार आपके हाथ में माइक आ गया, माइक्रोफोन आ गया कान पर, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर अ परफॉर्मर, यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ रॉक स्टार। एक भी बंदे से डरने की जरूरत नहीं है। जो कहना दिल से रखो, क्रिएट वैल्यू, कनेक्ट विद द ऑडियंस, यू विल रॉक। वाह। अच्छा, आप जैसे इतने सारे शोज कर चुके हैं, अभी भी करते हैं, करते रहते हैं, तो कई बार ना हर शो में हर किसी का एक एक्स फैक्टर भी होता है। तो इतने सारे शोज के बाद अगर जैसे और भी हम लोग शोज करते हैं और बता रहे, हम काफी अभी हजारों लाखों लोग मेरे ख्याल से काफी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी देखते रहेंगे। तो अगर आपको एक मैसेज देना है कि किसी भी शो को या इवेंट को या एक अपनी स्पीकिंग को या सिंगिंग को एक मैजिकल बनाना है, ऑसम बनाना है, तो एनी टिप फॉर दैट? मैजिकल और ऑसम बनाना, तो उसके लिए सबसे पहला ऑथेंटिसिटी फॉलो करें। जैसे हैं वैसे रहें, वैसे ही साउंड करें, वैसे ही बात करें। कुछ ऊपरा नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग ये गलती करते हैं, वो आर्टिफिशियल लगने लग जाते हैं जब वो बोलते हैं। वो मत करना कभी भी। वो करने से आप अपनी ऑथेंटिसिटी को, अपनी ऑर्गेनिकनेस को लूज कर लेते हो। वहां पर ऑडियंस का कनेक्शन आपसे खत्म हो जाता है। तो सेकेंडली, आप अपना एनर्जी, एंथुजियाज्म को बरकरार रखिए। इसमें बड़ी पावर है। ऑडियंस आपकी एनर्जी के साथ, आपके एंथुजियाज्म के साथ बहुत कनेक्ट करती है। और इनफैक्ट आप थोड़ा सा एनर्जी फील करना चाहते हो, खुद एनर्जेटिक फील करते हो, उससे आपका भी कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है। और वो वन टिप ही चाहिए होती है। जैसे वो कहते हैं ना, 212 डिग्री पे तक तो पानी को कुछ नहीं होता, लेकिन 213 डिग्री पर पानी का उबाला आ जाता है। बस वो वन टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। एक टिप आपका 1 डिग्री ऊपर आ जाता है तो एकदम सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो 1 डिग्री एक्स्ट्रा रख के माइंड में चले कि मुझे थोड़ा सा अगर एंथुजियाज्म क्रिएट करना होगा, एनर्जी क्रिएट करनी होगी, वो एबिलिटी अपने अंदर लेके आइए, ताकि वो एबिलिटी जब आपको रियल टाइम ऑडियंस के सामने यूज करनी पड़े, आप यूज कर सकते हो। Wow, I got it. Matlab, we have to be natural, we have to be ourselves. It's not like artificial because people will pick you like anything और हर तरह की ऑडियंस होती है. Got it. All right, so एक और क्विक ब्रेक लेते हैं और एक प्यारा सा गाना सुनते हैं. हमारे बीच में डॉक्टर महाश्वेता हैं, जो कि टीचर भी हैं, सिखाती भी हैं और बहुत सुंदर गाती भी हैं. बहुत अच्छी नॉलेज है इनको शास्त्रीय संगीत की. तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर महाश्वेता से के एक गीत जरूर वो प्रस्तुत करें. ओवर टू यू डॉक्टर महाश्वेता एंड Hello, वेलकम. Atul Sherry. हेलो मैम, Hi. हेलो मैम, नाइस टू सी यू। Thank you so much. You know something, while you were talking, I was intently watching that beautiful halo around your pagri. And the color that you're wearing is the green color. It's the color of the heart chakra. So I was just wondering that, you know, you're speaking so much from the heart that it is reflecting on your, you know, this thing, on your crown chakra. एंड आपको एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपने जो जो बातें कही ना, ये हम सब कुछ सुन सके हमारी दादी से. माय ग्रैंडमॉम वाज लाइक अ शी वाज अ ग्रेट सिंगर. उस जमाने में औरतें उतना स्टेज पे गाती नहीं थी. शी यूज्ड टू टेल मी वन थिंग वेरी वेरी you know, intently and authentically, that the more you speak your heart out, your intuition also remains powerful. और वही बात आपने कही कि speak from your heart, because if there is no tandem between the heart and the throat, तो यहाँ प्रॉब्लम होता है. कभी किसी को कमर में प्रॉब्लम होता है. all the diseases that we get in our body, Dadi used to say that it is actually our pain of not being able to speak out which we trap. जैसे अगर दिल खोल के नहीं बोला तो हार्ट में प्रॉब्लम हो गया.
you know, झूठ बोला तो गले में problem हो जाएगी, you know, everything. So it's like that. So your speech is actually heroic. So there is this song that I was actually Thank you, ma'am. thinking of, you know, singing for you. The song का नाम ही है Hero, and it has been sung by Mariah Carey, and I hope you like it. Goes like this. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then the hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. When you feel like hope is gone, look inside your and be strong, and you finally see the truth, that the hero lies in you, that the hero lies in you, that the hero lies in you. Thank you so much. Wow, that was really awesome, ma'am. And I want to say something. You always pay the price of not being you on the stage. But the moment you are you get the prize. So sweet. Thank you, Dr. Mahashweta, and thank you, Author Sherry. This is really amazing. और एक सवाल मेरे को हमेशा से मेरे दिमाग में था, दिल में था, मैंने सोचा कि मैं मिलके पूछूंगा, लेकिन 3-4 महीने से जो अजीब सी सिचुएशन हो गई एकदम से क्वारंटाइन की, और हम लोगों ने इसी के अंदर ये इनिशिएटिव लिया, तो आपका रियल नेम कुछ और है और आपने ये ऑथर शेरी वो कैसे हुआ? अगर आप इसके बारे में भी हमें जरूर कुछ बताएं। और क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम भी लोग सोचते हैं कि हम ये करना है वो करना है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ ऑथर शेर तो उसके अंदर शेर भी है। आपकी मैंने पोस्ट देखी है, उसमें आप शेर के साथ में भी बहुत अच्छी अच्छी कोट्स शेयर करते हैं। और ऑथर तो आप हैं ही, आपने कितनी बुक्स लिखी हैं उसके बारे में भी हमें जरूर बताइए, और किस टॉपिक के ऊपर हैं, और कोई विजन या मिशन उसके बारे में भी हमें जरूर बताइए। एक्चुअली लायन का जो साइन है वो एक इवेंजलिस्ट का है, वो ये आप बाइबल से कनेक्टेड है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन, इट्स द मार्क ऑफ अ फिनिक्स। तो आई रिमेम्बर 2011 में कुछ दौर लाइफ में ऐसा आया था जिसमें कि मैं काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में था, और उसके बाद जब मैंने रिकवर करा तो मैंने कुछ कोट्स लिखने शुरू करे ट्विटर पे। आई रोट मोर देन 5000 कोट्स, and I started feeling that now I can write more and more. And from there I realized that the writing helps you to heal. लिखने से आप heal होते हैं। तो वहाँ से मेरा जो लिखने का सफ़र शुरू हुआ, मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे। ब्लॉग्स लिख करके मैंने अपने फ्रेंड्स को शेयर करना शुरू करे व्हाट्सएप पर। दे स्टार्टेड लाइकिंग माई ब्लॉग्स, दे स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन माई ब्लॉग्स। बहुत बड़ा मेरा ब्लॉग साइट है, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। लोग वेट करते थे मैं कुछ लिखूं। वहाँ से मुझे किसी इंटरनेशनल ब्लॉगर ने ऑफर किया, एंड दे कॉल्ड मी टू ज्वाइन एज अ पैनल ब्लॉगर ओवर देयर। आई बिकेम एन इंटरनेशनल ब्लॉगर विद वन ऑफ द वेबसाइट्स इन लंदन। और वहाँ से ये सफ़र बिल्कुल रफ्तार पकड़ गया। और 2017 में जब मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स लिख लिए, तो मैंने अपने आप को एक एम दिया कि अब मैं कुछ ब्लॉग्स बिल्कुल स्पेसिफिक लिखूंगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लाइफ स्किल्स के ऊपर, और उन्हीं को मैं कोलैबोरेट करके अपनी किताब का एक शेप दूंगा। And in the month of September 2017, 3rd September, I launched my book with around 180 people in a big hall with a lot of authors, established authors, journalists, and public speakers over there. और वहाँ से मेरा ये सफ़र जो है शुरू हुआ लिखने का। सुप्रीत सिंह अरोड़ा मेरा रियल नेम है। सुप्रीत सिंह अरोड़ा से मैंने शेरी एज अ पेन नेम लिखना शुरू करा। तो वो शेरी जो है वो शेर से शेरी बना, क्योंकि वो डिप्रेशन से ओवरकम किया, वो लायनिज्म आ गया। Wow.
वो लायनिज्म आ गया तो वो लायनिज्म रिफ्लेक्ट भी होने लग गया। तो वो जो शेर से शायरी बना, वो शायरी से फिर मैंने प्रीफिक्स लगाना शुरू करा। मैंने ये देखा कि लोग इंजीनियर होते हैं तो ईआर लगाते हैं, डॉक्टर होते हैं तो जैसे डॉक्टर महाश्वेता मैम उन्होंने डॉक्टर लगाया हुआ है, ऐसे सीए होते हैं वो सी लिखते हैं। तो मैंने कहा ऑथर क्यों नहीं है, ऑथर भी तो एक प्राइड है, ऑथर शायरी करते हैं। फिर वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि अब मुझे ऑथर का मैंने टैग लिया है तो मुझे उसको लिव भी करना है, मुझे उस एक्सपेक्टेशन को, उस जिम्मेवारी को निभाना है। माई डैड रोट अ बुक. My daughter, at the age of 8 years, wrote a book. She's now 9 years. She's one of the youngest author in Delhi and one of the youngest author in India. She has been covered by Hindustan Times, Punjab Kesari, leading newspapers of India. My wife and me have co-authored a book during this lockdown. मैंने total 4 किताबें लिख दी हैं। तो I belong to a family of 4 generation of authors now. और हमने ये सब कभी नहीं सोचा था कि हम ये सब कुछ करेंगे, but it all happened and it is all happening. And life is happening, my friend. वाह, क्या बात है। लवली। और राइट, और टाइम का हमें पता ही नहीं लगा, लेकिन मेरे को एक बात पूछनी है कि जैसे आपके कोई टिप देना चाहें, जो हमारे कितने सारे परफॉर्मर्स हैं जो कि शायद एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचना चाहते हैं, कुछ देख रहे हैं कि हाँ यार कभी हम भी पहुंचेंगे क्या, तो वो जो आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, कोई क्या मैसेज देना चाहेंगे फ्रॉम ऑल योर एमएस टॉक्स टीम एंड योर पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी, जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है और इतना आप चीजें कर रहे हैं, सो एनी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट और पावरफुल मैसेज? I want to tell all of them that don't be a message, be a messenger. Speak with high energy when you are on the podium and live your authenticity. The world needs the most. वाह, high energy, wow, super, क्या बात है, thank you so much, lovely. And now I would like to request Anila ji to say something about Music Veranda and anything she wished to share or talk about today's show, and then we'll wrap up. So over to you, Anila ji. Thank you so much. It was a wonderful insight. और authenticity जो कि बहुत ही important है वेरांडा में भी, और जो हम सोचते हैं और बोलते हैं सभी को, एंड आपने आज ये बता के और reinforce करके that we are going in the right direction. So thank you so much. And Veranda, it's a simple platform. It is a platform of connection and music. So everybody who loves music and who loves connection is welcome to be part of it. So that's it, what I have to say about Veranda, and thank you so much. And जाते जाते एक ऐसा गाना है महाश्वेता, क्योंकि गानों में ऐसी बात होती है, कुछ ही शब्दों में इतनी सारी चीजें बोल देते हैं, तो एक बहुत सुंदर गाना है, आई होप यू लाइक इट, इट इज अ गजल. महाश्वेता, कैन यू सिंग दैट फॉर अस? आर यू देयर? Okay, I think she's not. Yes, I'm there. One sec. One sec. She is always there, वो दूर से देखती रहती है, सुनती रहती है। I want to say हाँ जी, हाँ something. जी। You guys have created an amazing platform. Please keep up the good work. The world needs this kind of platform. Okay, and I've been very honest in saying this. और मैं खुद भी बहुत पसंद करता हूँ म्यूजिक को, गाना सुनना मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया आप लोगों ने। इसको आगे बढ़ाइए, इसको अगले लेवल तक लेके जाइए। कहीं पे अपनी मेरा सपोर्ट चाहिए, आई प्रॉमिस माय सपोर्ट एनीवेयर यू वांट। So sweet of you, Adarsh Shahri. Yes, we would definitely requiring your support, क्योंकि होता है 1 और 1 11, पब्लिक सिंगिंग, पब्लिक स्पीकिंग, और म्यूजिक तो एक ऐसी चीज है कि शब्दों में जो आप लय से बोल रहे हैं ना, वो इतना मधुर लग रहा है कि हमें मतलब आपको म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है, जो आप बोलते हैं वही हमारे लिए इतना बढ़िया हो जाता है। गौरव, मुझे किसी ने अभी मैसेज कराया कि पंजाबी सॉन्ग पेंडिंग रह गया। अच्छा, वो तो फिर दिया का है। So Ashweta, you like to? I just like to sing one line. Okay. Author Sherry, can you hear me? Yes, I can hear you very much and love You to know hear something? you again. You know something? अभी जो मिस्टर गौरव ने कहा कि वक्त को बांध लिया था आपने, मुझे सच में लग रहा है कि वक्त को आपने बिल्कुल कैद कर दिया है। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ गाती हूँ आपके लिए, एंड इट्स अ गजल अगेन।
वाह वाह। वक्त की कैद में हाँ उम्र सारी मेरी, वक्त की कैद में उम्र सारी मेरी, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो के सनम जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो है, क्या बात। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाह वाह वाह, मत क्या बात जाइए, है। कुछ दिन आ जाओ। हाँ हाँ मैम, क्या बात है। वेरी नाइस, यू हैव टच्ड माय हार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर सिंगिंग सो ब्यूटीफुली। क्या गौरव, हमारे साथ गौरव भी है और ही वांट्स टू सिंग समथिंग स्पेशली फॉर यू सर। और और गौरव के बाद में आई विल रिक्वेस्ट ऑथर गौरव। शेरी टू सिंग, क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया पंजाबी सॉन्ग तैयार करके आए हैं और मेरी एक गुजारिश है कि हम उनको लाइव सुने। लेकिन चलो एक गौरव से सुनते हैं, बट वी विल एंड दिस सॉन्ग विद अ पंजाबी नंबर टू सिंग। यस यस यस, सो ओवर टू यू गौरव भाई। गौरव जी इज फ्रॉम गेट जी बैंड और ये भी बहुत प्यारा गाते हैं, कॉन्सर्ट करते रहते हैं, काफी सारे शोज कर चुके हैं और आपके उसमें तो आए थे, यू नो हिम। यस यस, गौरव इज वेरी टैलेंटेड। इन फैक्ट मैं डॉक्टर महाश्वेता का बहुत थैंकफुल हूँ। शी संग सो वेल, वेरी वेल, मतलब मजा आ गया उनको सुन। फर्स्ट ऑफ ऑल शेरी जी, बिग वेलकम। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच गौरव जी। मतलब एक ही चीज बोलूंगा, यू आर ऑसम। थैंक यू सर, थैंक यू। एक ही वर्ड होता है ना, कभी कभी कहते हैं एक वर्ड में पूरी जिंदगी निकल जाती है, तो आपके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, यू आर ऑसम, मोर देन ऑसम, एंड यू आर लुकिंग रियली ग्रेट। ग्रीन कलर इज माय फेवरेट, जो आपने पगड़ी पहन रखी है। हाँ, वो मनी का कलर भी ग्रीन होता है, वही वाला ग्रीन ना। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। Just kidding, yeah, just kidding. Of course. Green is think green, right? Clean Delhi, green Delhi. एग्जैक्टली। और आज इतना अच्छा दिन है, आपका टॉक भी है, और आज मेरे जो बैंड मेंबर हैं उनका प्रकर्शन जो मेरे प्ले करते हैं उनका बर्थडे भी है, तो वी आर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। तो कहते हैं ना जश्न डबल हो गया, ये जश्न डबल हो गया। तो कुछ लाइनें मैं शेरी जी आपके लिए गाना चाहूंगा। प्लीज। जिस्म महकता जादू जादू, जुल्फ घनेरी खुशबू खुशबू, सांसें तुम्हारी महकी महकी, जुल्फे तुम्हारी बहकी बहकी, तुम्हारा बदन है जैसे चमन, क्या होश उड़ा देंगे नज़ारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आँखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। शेरी जी, थम्स अप टू यू। बहुत बहुत सच में अच्छा लगता है जब आप सामने होते हैं, बड़ा ही अलग फील आता है, बड़ा ही अच्छा मजा आता है। और
जब जीजे और अनिला जी साथ में होती हैं और सारे इतने सारे अच्छे अच्छे बंदे, दिवाकर हमारे साथ हैं और हमारे मुकेश दा, हमारे खंडेलवाल जी इतना अच्छा मुकेश को गाते हैं, अनूप मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और जोशी जी हमारे सामने है, गुरु जी हमारे पास हैं, दिव्या इतना अच्छा गाती है, विनय जी इतना गाते हैं, माँ श्वेता जी इतना अच्छा गाती हैं, और सायरा जी गौरव भाई आप भी बहुत अच्छा गाते हो। और अभी टाइम की बहुत थोड़ा बढ़िया नजाकत गाना देखते गाया। हुए मैं आपको रोकना चाहूंगा, बट थैंक यू सो मच फॉर अ स्वीट नंबर, सो लवली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब नाउ दोस्तों टाइम आ गया है, सिंग इज किंग, the man himself, Arthur Sherry, will be singing live on Music Veranda. We are so blessed and fortunate कि he would be sharing the Punjabi song, जो कि एकदम सब लोग डांस करने के लिए रेडी हो जाओ, right? Just let's get rocking and here you go. जीजे हाँ जी जीजे गौरव भाई आप कुछ बोल रहे हैं? यस यस, मैं दो बात बोलना चाहूंगा, आपके लिए थम्स अप बनता है। yeah, hip hip hooray, hip hip hooray. Yes, hooray. All right, so over to you. थैंक और यू तो शेरी गौरव, भाई, थैंक यू गौरव। ये पंजाबी सॉन्ग जो है मेरे डैड बहुत सुना करते थे। एक्चुअली मेरे डैड इस सॉन्ग को क्यों सुना करते थे मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद किया करते थे और वो साथ में पैग लगाते थे मैकडॉवल विस्की का, और मैकडॉवल विस्की का जब पैग लगता था साथ में वो पेप्सी और वो सोडा डालते थे और पैग लगाते थे साथ में, और साथ में गाना चल रहा होता था। और गाना पता है किसने गाया है पंजाबी में? जगजीत सिंह ने, द क्या गजल। बात है। हाँ, तो मैं वहां पे साथ में बैठता था और मैं डैड के साथ, देखो ड्रिंक तो नहीं करता, इतनी हिमाकत मैंने नहीं करी अपने पापा के साथ कभी पीने की, लेकिन हाँ मैं वहां बैठ के उनका चिकन और नमकीन जरूर खाता था और उनके बनाया हुए सैलेड को जरूर खाता था। तो मैं पापा के साथ बैठता था, वो गाने को एंजॉय करता था। तो ये गाना मैंने वहां पे मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया और देखो अभी भी याद है मुझे। क्या पता था एक दिन मुझे म्यूजिक वरांडा में आके सुनाना पड़ेगा, तो आज मैं सुना रहा हूँ आपको। वाह, यस। ओ ढाई दिन न जवानी नाल चलदी, ओ ढाई दिन न जवानी नाल चलदी, कुर्ती मल मल दी। ओ ढाई दिन न जवानी नाल चलदी, कुर्ती मल मल दी। अथरी तेरी जवानी कुड़िए तेरे बस ना रहिंदी, ओए होए अथरी, ओए अथरी, ओए अथरी तेरी जवानी कुड़िए तेरे बस ना रहिंदी। साडे दिल नू लांबू लावे तेरे हत्थां दी मेहंदी, नी तू सुन बेदी, नी तू सुन बेदी लाट वांगू बलदी, कुर्ती मल मल दी। ओ ढाई दिन ना जवानी नाल चलदी, कुर्ती मल मल दी। तेरे कोलो टुरना सिखे पंज दरिया दे पानी, जा तू कोई हिड़ सलेटी, जा कोई फुल्ला रानी। नी तू कुड़िया दे, नी तू कुड़िया दे विचों नहीं रलदी, कुर्ती मल मल दी। ओ ढाई दिन ना जवानी नाल चलदी, कुर्ती मल मल दी। पतली कुर्ती दे विचों दी रूप चांतियां मारे, अंग अंग तेरा टपदा रहिंदा, लूलू करे इशारे। ओ जुत्ती खलदी, ओ जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं ओ चलदी, कुर्ती मल मल दी। ओ ढाई दिन ना जवानी नाल चलदी, ओ ढाई दिन न जवानी नाल चलदी, कुर्ती मल मल दी। वाओ, क्या बात है, सुपर स्वीट, वेरी वेरी नाइस, लवली, क्या बात है। थोड़ा सा इसके बारे में और भी बताइए कि मतलब कुछ कुछ वर्ड्स मुझे बहुत एग्जैक्ट समझ में आ रहे थे, लेकिन कुछ एक थोड़ा सा उसमें और मीनिंग भी बताइए, सो दैट जिन भी लोगों ने सुना है वो और भी रिलेट कर पाए। और काफी लोगों को पंजाबी आती है लेकिन काफी लोगों को नहीं आती है, सो इफ यू कैन जस्ट शेयर द मीनिंग एज वेल।
एक्चुअली जो सिंगर है इस गाने के थ्रू लड़की की प्रेस कर रहा है कि यू आर द मोस्ट हॉट एंड सेक्सी गर्ल, और आपका ये जो कपड़े है ना ये आपकी हॉटनेस को डिफाइन नहीं कर रहे, आप इससे ज्यादा हॉट हैं, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल। एंड देन ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि एक्चुअली ब्यूटिफिकेशन के ऊपर सारा एक्सप्लेनेशन है, तो उसको कंपेयर किया सबसे पहले जो पंजाब में 5 दरियों के पानी है उससे ब्यूटी को कंपेयर किया, और जो हाथों की मेहंदी है उससे ब्यूटी को कंपेयर किया, और फिर उसमें पंजाबी जुत्ती चलती है, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलती, मतलब वो जुत्ती इतनी स्मूथ होती है, इतनी परफेक्ट होती है, उसमें कोई मरोड़ा नहीं चलता, उसमें कोई बीच में कोई कोई मुड़ाव नहीं आता है, तो इतना स्मूथ है आपकी ब्यूटी। तो बेसिकली उसके ऊपर गाना है, उससे सारा मीनिंग कनेक्टेड है ये। हाँ, सो स्वीट, क्या बात है। दोस्तों आपने सुना, मैंने ऐसे ही बस मेरा मन किया रैंडमली मैं पूछूं शेरी भाई से कि इसका मतलब बताइए, और ही इज रेडी, ही इज नो एवरीथिंग। मतलब दिस मीन्स कि इतना क्लोज है इनके ये हार्ट के। और पता है हम यहाँ पर सारे लोग, हमारी डेली महफिल जमती है 9:30 बजे, हम लोग बहुत सारे गाने गाते हैं जिसको जो पसंद है, जिसने जो प्रिपेयर किया है। और हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी हम गाना गा रहे हैं उसको और भी समझें कि कौन उसका म्यूजिक डायरेक्टर है, या क्या लिरिक्स में क्या बातें कही गई हैं, क्या मीनिंग है। तो मेरे ख्याल से इट इज ऑल अबाउट फीलिंग एज वेल, कि जैसे आप वो मोमेंट रियलाइज कर पा रहे हैं और एक्चुअल उसका मीनिंग समझ में आ रहे हैं। कई बार होता है ना कि हमारा मूड ऑफ होता है, तब हमें लिरिक्स समझ में आते हैं कि हाँ यार ये गाना तो मेरी सिचुएशन के ऊपर एकदम फिट बैठ रहा है। तो एक मेरे पास दिया की रिक्वेस्ट चाहिए, मैं सोचा था कि इसको करें, लेकिन हम एक गाना, एक पंजाबी गाना जो कि उस टाइम रह गया था, ये हम जरूर सुनेंगे। तो दिया बेटा जल्दी से आप वो गाना सुना दो एंड देन वी विल रैप अप। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। ओ मेरा पहला प्यार तुसी तू चाड़दा, सानू कट्ठियां नू होगी किन्ने साल। ओ मेरा पहला प्यार तुसी तू चाड़दा, सानू कट्ठियां नू होगी किन्ने साल। ओ मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया, दूजी वार भी होया है तेरे नाल। ओ मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया, दूजी वार भी होया है तेरे नाल। मैं तेनू सपने च भी नहीं छड़ सकदी, मैं तां मर के भी होना नहीं ओ पाप वे। जे पता करना प्यार किन्ना करदी, तू समुंदरां नू जग लई नाप वे। मैं तेनू सपने च भी नहीं छड़ सकदी, मैं तां मर के भी होना नहीं ओ पाप वे। जे पता करना प्यार किन्ना करदी, तू समुंदरां नू जग लई नाप वे। बेसुरी तेरे बिना मेरी जिंदगी, ना कोई लय ते ना कोई ताल। ओ मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया, दूजी वार भी होया है तेरे नाल। हाय वे दूजी वार भी होया है तेरे नाल, हाय वे दूजी वार भी होया है तेरे नाल। थैंक यू, वाह वाह, थैंक यू बहुत सो बढ़िया, मच। वेरी नाइस, बहुत सुंदर दिया। सो स्वीट, क्या बात है। ऑल राइट दोस्तों, अलविदा कहने का टाइम आ गया, लेकिन मन नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो हमारी बातें अधूरी हैं, इतनी सारी बातें हमें करनी है और इतनी सारी हम कर चुके। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि यार इतना अच्छा लग रहा है ये बातें सुनते हुए, समझते हुए। और दोस्तों हम लोग इसमें से अगर कुछ चीजें भी अपनी लाइफ में अपना लें, सो लाइफ इज गोइंग टू बी रियली मोर ऑसम। क्योंकि जो ये एक्सपर्ट हैं, ये इन्होंने वो दौर से गुजर चुके हैं जिस दौर से शायद हम गुजरने वाले हैं। इन्होंने वो गड्ढे भी देखे हैं, इन्होंने वो चीजें फील भी करी हैं, एक्सपीरियंस किया है, और उसी से इन्होंने सारा शेयर किया। एंड थैंक यू सो मच, रियली हार्टी ग्रेटिट्यूड डॉक्टर शेरी भाई कि आज आपने अपना कीमती टाइम निकाला। मुझे मालूम है आप सुबह से बहुत बिजी थे, बैक टू बैक शोज थे, और रियली दिल से थैंक यू कि आपने आके हमारा मान बढ़ाया और इतनी प्यारी बातें हमें सिखाई, बताई और शेयर करी। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू एवरी इवनिंग। हम लोग यहाँ पे 9:30 बजे हमारी महफिल जमती है। आपको जब टाइम मिले, आप यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। And over to you, Sherry bhai. Any thoughts? And we will now wrap up this show. So over to you. थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गौरव, थैंक यू अनिला जी फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, और ये गानों ने एक्चुअली महफिल बांधी। दिया बहुत अच्छा गाती है, डॉक्टर मार्शेता थैंक यू। बहुत अच्छा गाती है, दिल से गाती है, और अपने गौरव भाई एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा दिल से गाते हैं, कितना कितना प्यारी आवाज़ है इनकी।
और जो मिस्टर डे है उन्होंने बहुत सुंदर गाया, बहुत कनेक्ट फील हुआ। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अपनापन सा लगता है इस तरह के प्लेटफॉर्म में। इसका क्रेडिट गौरव और अनिला मैम आपको जाता है, आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है। मैंने तो शायद कभी नहीं सुना इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म कोई चल रहा है। आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। कोई मेरे से आपको ये पूछेगा कोई म्यूजिक का प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हो क्या, तो मैं उनको सीधा बोलूंगा हाँ एक प्लेटफॉर्म है म्यूजिक वेरेंडा, जाओ वहाँ ज्वाइन करो। हाँ, सो स्वीट, लवली, थैंक यू सो मच शेरी भाई। और अनिला जी भी कुछ कहना चाहती हैं, बहुत देर से वो बात कर रही हैं, तो ओवर टू यू अनिला जी। बस ये बोलना चाह रही हूँ, सेशन ना अभी अब ये हम लोग के आपस में अब ये हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का थीम है बातें। तो जो गाने भी होंगे अब सारे बातों से रिलेटेड ही होंगे। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। राइट राइट। सेशन इज मोर इनसाइट, बेटर इनसाइट। थैंक यू सो हाँ जी, हाँ जी, हम आपसे गुजारिश करेंगे। थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर द रिमाइंडर। एक्चुअली 9:30 से 10:30 हम लोग डेली कर रहे हैं। हम लोगों ने ये अप्रैल में शुरू किया था, रिसेंटली हम लोगों ने इसके 100 दिन कंप्लीट किए म्यूजिक वरांडा के। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपके पास टाइम है थोड़ी देर हमारे साथ और रहिए। बाकी ये जो लाइव सेशन है वी आर गोइंग टू क्लोज इट। सो थैंक यू सो मच शेरी भाई फॉर जॉइनिंग म्यूजिक वरांडा। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय यू। प्लेजर, इट थैंक रियली यू वेरी मीन्स मच अ फॉर लॉट हैविंग मी। कि आप आए, and we would looking forward to have you again and again as many times as we can, because we all love you a lot and we all want to learn more from you। और आपने अभी वो जो एक इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। कुछ 30 डेज का एक सेशन है, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हर उम्र के। कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनकी मम्मी, चाची, दादी, नानी सब लोग पूरी फैमिली आती है गाने के लिए। तो आपका जो एक कुछ आपने शुरू अभी किया है जो कि 30 डेज का चैलेंज, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, एंड देन we'll end this show. Sure. Thank you, Gaurav, for giving me this opportunity. So I have a community of Facebook by the name of Public Speaking University. As you all know that I am on a mission to create 1 million public speakers in India by 2030. Unlike those diaspora who go out and settle abroad and make money, I want to do something for India, with India, for the Indians. And that is the reason I am creating an ecosystem to bring presentation literacy and spread awareness on public speaking skills, because this is the only medium, or I would say this is one of the great mediums where you can grow your confidence. तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, जब तक आपको रेगुलर फीडबैक्स नहीं मिलते ना तब तक आप सीख नहीं पाते अच्छे से। और ये रेगुलर फीडबैक्स के लिए आप किसी मेंटर को ज्वाइन करते हो तो वो चार्ज बहुत ज़्यादा लेता है। मेरे भी चार्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने कम्युनिटी का एक इनिशिएटिव लिया 30 डेज फ्री ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स का। इट्स अ सर्टिफिकेशन कोर्स और आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई एनरोलमेंट फी नहीं है। वी हैव गॉट मोर देन 110 पीपल ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद इन 3 days। ओके, 110 लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं। तो आपने बेसिकली करना क्या, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, अपने कैमरा फियर को हटाना चाहते हैं, तो आपको रेगुलरली मैं एक रोज टॉपिक दूंगा। वो टॉपिक पे आपको रोज कुछ ना कुछ अपना वीडियो क्रिएट करके कम्युनिटी के फेसबुक कम्युनिटी पे पोस्ट करना है, और मैं आपको उस पर पर्सनलाइज फीडबैक दूंगा जिससे आपके अपने स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा हर हफ्ते 30 डेज का कोर्स है, तो महीने में 4 बारी 4 मेंटरशिप सेशंस होंगे जिसमें मैं आपसे 1-on-1 बात करूंगा और पूरे ग्रुप से बात करूंगा। तो मेंटरशिप के मैं कोई आई एम नॉट चार्जिंग, बीइंग अ प्रोफेशनल आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, बिकॉज माय आइडिया इज दैट आई शुड गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। So this is one of the initiative which I have created, as Gaurav rightly said. It's a 30 days transformation course. So I am hoping that जो 110 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया है या आप में से कुछ लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू नीड द सर्टिफिकेट इट विल कम विद अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट जो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, बट ऑल इन ऑल इट्स एब्सोल्युटली फ्री। माय mentorship, my guidance is absolutely at zero cost, completely complimentary, because I'm interested to give back, and I'm going to give back in a big way. It's going to happen. Thank you, Gaurav. वाओ, थैंक यू सो मच गाइज, फ्रेंड्स, दोस्तों, सहेलियों, बंधुजनों। ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि क्योंकि देखिए एक पब्लिक स्पीकिंग एक पब्लिक सिंगिंग है, लेकिन अभी हम सिर्फ वरांडा में गा रहे हैं। हमें बहुत जल्दी एक स्टेज के ऊपर गाना है, बड़े स्टेज के ऊपर गाना है, स्टूडियो में गाना है। तो वो जो इंटरेक्शन है, बातों का जादू है, वो हमें शेरी भाई से सीख सकते हैं। और इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं सभी से। बहुत जल्दी हम और दोबारा और लोगों के साथ मिलेंगे, बातें करेंगे। मेरे गीतों में मेरी कहानियां हैं, उसमें भी हम बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज होस्ट एंड दोस्त DJ Gaurav Jain signing off from Music Veranda, and thank you so much author Sherry
Take care. God bless you. Stay Thank you. safe. Bye-bye. Stay happy. Bye bye.